नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और ये है मॉक टेस्ट फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ कैंडिडेट्स और ये टेस्ट नंबर 3 है। इसके पहले 2 टेस्ट मैं अपलोड कर चुकी हूं। सो लेट्स dig right in to the test. It has got 20 questions which have been previously asked in the UGC NET exams. So let's do it. Fuel from the following: ethanol, biogas, CNG, and hydrogen. So all of these are eco-friendly and it's difficult to choose which one is the most eco-friendly. So ethanol is prepared from plants, maize, corn. So it is used in agricultural crops to prepare an eco-friendly fuel. Then biogas. Biogas is actually prepared from waste material, from municipal waste or agricultural waste. So something that is already a waste is being utilized to create energy, and that is biogas. And biogas is a mixture of methane, carbon monoxide, carbon dioxide, and hydrogen sulfide, traces of hydrogen sulfide. Then there is CNG, which is compressed natural gas, which is mainly methane. And then there is hydrogen, which is prepared from the electrolysis of water, and not just water, mostly a bit of KOH, potassium hydroxide, is mixed in the water to make the water ionic, and hydrogen is produced electrolytically. So here, option B, biogas, seems most eco-friendly because it is using a waste product to generate energy. So biogas is the most eco-friendly fuel here. Answer is B. If you don't want me to solve, if you want to solve this quiz yourself, just mute the audio. Answer is B. Question number 2, assertion. Sustainable development is critical to the well-being of human society. The reason? Environmentally sound policies do not harm the environment or deplete natural resources. So options are both A and R are correct, and R is the correct explanation of A. Both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. A is true and R is false. A is false, but R is, sorry, here there's a typo. Here it should be A is true, but R is false. Then it should be A is false, but R is true. So basically, let me correct it. A is false, but R is so here A is false, but R is true. So the assertion of sustainable development is critical to the well-being of human society. Very correct. This assertion is correct. Reason: environmentally sound policies do not harm the environment or deplete natural resources. So B is also correct because environmentally sound policies actually do not harm the environment and they do not deplete natural resources. But this reason B doesn't explain A very well. Sustainable development human beings के लिए critical है और environmental sound policies environment को harm नहीं करती है, natural resources को deplete नहीं करती है. पर इससे human beings के well being का क्या connection ये established नहीं हो पा रहा है. तो जो reason B है वो बहुत sound reason नहीं है assertion A के लिए. तो आंसर होगा B. Both A and R are correct. Assertion भी correct है, reason भी correct है, but R is not the correct explanation of A. लेकिन जो reason है वो इस assertion को सही से explain नहीं करता है. So answer is B. Both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. तो ये जब भी हम comprehension का question करते हैं कि 2 statement है उसको सही और गलत बताएं तो उस पर बहुत ध्यान देने वाली बात है. The dominant source of NOx pollution in urban areas is, हम सब जानते हैं road transport, vehicular transport, उससे सबसे ज्यादा NOx pollution होता है और NOx हाइड्रोकार्बन्स के साथ जब मिल जाता है तो यही फोटोकेमिकल स्मॉग भी बनाता है जिसको लॉस एंजल्स स्मॉग कहते हैं. विंटर्स में जब इन्वर्जन कंडीशन होता है तो फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है और वो रोड ट्रांसपोर्ट से जो नॉक्स निकलता है उसी की वजह से होता है. द डोमिनेंट सोर्स ऑफ नॉक्स पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज इज ए, रोड ट्रांसपोर्ट. ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटरबॉर्न डिजीज एक्सेप्ट, यहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक है. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वाटरबॉर्न डिजीजेस. यहाँ पे मैं करेक्ट थोड़ा करूंगी. फॉलोइंग आर, all of the following are waterborne diseases except, so typhoid is a waterborne disease because contaminated खाना और पानी से टाइफाइड होता है.
हेपेटाइटिस बी वैसे ही होता है कंटेमिनेटेड खाने पानी से या अल्कोहल अब्यूज से। कॉलेरा भी वैसे ही होता है, उसका भी वही कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है, और बैक्टीरिया होता है विब्रियो कॉलरी, उसकी वजह से होता है। कॉलेरा भी वाटरबोर्न डिजीज है। डेंगू, डेंगू एक डिजीज है जो डायरेक्टली वाटरबोर्न नहीं है, क्योंकि डेंगू जो है वो मच्छर के काटने से होता है, ना कि कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से। ये और बात है कि वो मच्छर पानी में पलता है, लेकिन डेंगू मच्छर के काटने से होता है। तो इसलिए डेंगू एक वाटरबोर्न डिजीज नहीं है, बिकॉज इट्स अ मॉस्किटो बोर्न डिजीज। So answer is D, dengue. Indian government's target for power production from small hydropower projects by the year 2022 is A, 1 gigawatt, 5, B, 5 gigawatt, C, 10 gigawatt और D, 15 gigawatt. So it's B, 5 gigawatt. ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसके लिए आपको वेबसाइट देखनी पड़ेगी या गूगल सर्च करना पड़ेगा। आंसर इज 5 gigawatt, so आंसर इज B. और ये नीति आयोग जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंक टैंक है, उसके द्वारा रिकमेंडेशन था कि 2022 तक हम 5 गीगावाट एनर्जी स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से बनाएंगे। तो ये है आंसर बी। सॉरी। Recently, an international agreement on phasing out hydrofluorocarbons was signed in one of the following countries. Options are A, Rwanda, B, Morocco, C, South Africa और D, Algeria. ये सारे कंट्रीज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही हैं और आंसर है ए, रुवांडा। इसके लिए ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इन सब फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए आपको सिंपली गूगल करना होगा या किसी न्यूज वेबसाइट पर जाइए और पता करिए। तो मैंने कोई भी आंसर, जितने भी आंसर सबको वेरीफाई करके ही मैं आपको बता रही हूँ। आंसर इज ए, रुवांडा। Which of the following natural hazards is not hydrometeorological? हाइड्रो का मतलब होता है पानी और मेट्रोलॉजिकल का मतलब होता है मौसम। तो जब मौसम पर, सीजन पर पानी बरसता है, उससे जो हैजर्ड होता है, नेचुरल हैजर्ड होता है, उसको कहते हैं हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हैजर्ड। Hydrometeorological hazards happen because of certain weather conditions which leads to rainfall and other forms of precipitation. So snow avalanche, clearly snow, बर्फ तो मौसम के हिसाब से ही गिरती है और स्नो एवलांच भी जाड़े में ही आता है। सो ये तो हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हैजर्ड है ही। सी इरोजन, सी इरोजन भी ज्यादा तब होता है जब बारिश होता है और सी लेवल में राइज होता है, और सी या फिर लैंड से पानी सी तक बह के जाता है तो इरोजन होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्लियरली साइक्लोन है तो ये वेदर कंडीशन से रिलेटेड है, ट्रॉपिकल है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन भी, ये सारे ही हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हजार्ड है, पानी से रिलेटेड सभी हैं। सुनामी, tsunami is one which is not a hydrometeorological hazard, and please better understand it. You know, tsunami occurs in the sea, so it involves lots of sea water, but it's not a hydrometeorological hazard, it's a tectonic hazard. क्या होता है इसमें सुनामी में कि समंदर के तले के अंदर भूकंप आता है और उससे कंपन होता है और उससे समंदर का पानी हिल जाता है और बहुत ज्यादा हिलता है और जो कोस्टल एरियाज है वो सबमर्ज हो जाते हैं, तो सुनामी आता है। सुनामी का किसी भी मौसम से कोई लेना देना नहीं है, ये जब समंदर के अंदर टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं और उससे सुनामी आती है। सो इट्स नॉट अ हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हैजार्ड, इट्स अ टेक्टोनिक हैजार्ड। ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा इज अ थीम रिलेटेड टू protection of ozone layer, no. Climate change action plans, no. Sustainable development goals, yes. Millennium development goals, no. So answer is C, sustainable development goals. इसके लिए भी आप यूएन की वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड 2030 एजेंडा जो है वो आंसर सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से रिलेटेड है, और टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 9. Assertion. Sustainable mountain development should be a global priority. Of course, it should be a global priority. Reason. Mountain people are particularly vulnerable to impacts of climate change and natural disasters. So, options है both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is true and R is false. R is true and A is false. तो इसमें क्या है कि क्लियरली सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट शुड बी अ ग्लोबल प्रायोरिटी, तो ये तो सही है, असर्शन ए सही है। आर, रीजन आर, माउंटेन पीपल आर पर्टिकुलरली वनरेबल टू इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डिजास्टर्स। ये भी स्टेटमेंट सही है क्योंकि माउंटेन पीपल का जो इकोनॉमिक और सोशियोलॉजी है वो सब माउंटेन लाइफ से रिलेटेड होता है, और जो माउंटेन इकोसिस्टम से रिलेटेड होता है उनकी लाइफ, और इकोसिस्टम्स जो है वो पर्टिकुलरली वनरेबल है टू इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डिजास्टर्स, और इसलिए सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट जरूरी है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो ए को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। यहाँ पे पीपल की जगह अगर इकोसिस्टम होता
तो और परफेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। माउंटेन इकोसिस्टम आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डिजास्टर्स, और इसलिए सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट जरूरी है। और इकोसिस्टम जो है, एक इकोसिस्टम दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए भी जरूरी है। तो ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है assertion A का. So answer is B. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Environmental education does which of the following? Increase public awareness? Yes. Provides knowledge of environmental awareness? Yes. Does not provide disciplinary focus? This is iffy. ये sure नहीं है. Sensitizes individuals about the necessity of sustainable development. So clearly, ये 1, 2 और 3, 1, 2 और 4 ये तीनों ही सही है। पब्लिक अवेयरनेस भी बढ़ाता है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस भी बढ़ाता है, और लोगों को जागरूक करता है जरूरत की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या जरूरत है उसके बारे में। पर ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड, डज नॉट प्रोवाइड डिसिप्लिनरी फोकस, ये श्योर नहीं हुआ, क्योंकि डिसिप्लिनरी मतलब होता है सब्जेक्ट, और एनवायरमेंटल एजुकेशन सब्जेक्ट का फोकस जो है वो डिसिप्लिनरी फोकस मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। जैसे मैं एनवायरमेंटल एजुकेशन देती हूँ तो मैं तो सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ बताती हूँ, तो ये जो है थर्ड ऑप्शन ये सही नहीं होगा। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसमें आंसर होगा 1, 2 और 4, which is B. 1, 2 और 4, this is the correct option. I'm sorry मेरी आवाज अभी तक ठीक नहीं हुई है, अभी तक भी ठीक नहीं। Total number of sustainable development goals announced by the UN in 2015 were, answer is B, 17. और इसके लिए भी आपको यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो यूएन की लीड एजेंसी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट पे, और 170 देशों में काम करती है पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को हटाने के लिए, उसकी वेबसाइट पे जाइए तो ये आपको आंसर मिलेगा। आंसर है B, 17. In India, non-formal environmental education provides support to, ये भी मैंने गूगल सर्च करके आंसर निकाला है, और इसका आंसर होगा 1 and 2, ये सही है। इको क्लब्स और ग्लोब, ये सही है। ग्लोब का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशन टू बेनिफिट द एनवायरनमेंट, या फिर ग्लोबल लेजिस्लेचर्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर बैलेंस्ड एनवायरनमेंट, ये दोनों ही फुल फॉर्म्स होते हैं ग्लोब के। और जो नॉन फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन है वो इको क्लब्स और ग्लोब को सपोर्ट करता है। तो आंसर है A, 1 and 2, इको क्लब्स एंड ग्लोब. That's 30. Which of the following factors determines biological zonation in the oceans? Biological zonation मतलब क्या होता है? ओशन में जोन्स होते हैं, मतलब लेयर्स होते हैं, और ओशंस के जो अलग अलग बायोलॉजिकल लेयर्स होते हैं उसमें अलग अलग बायोलॉजिकल एक्टिविटी और बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म्स होते हैं। And that zonation or layers in the ocean, which has different, and each layer having different biological activity and each layer having different biological organisms, it is determined by, of course, depth, because with depth varies the zone and biological activity, and light availability. Why things vary with depth? Because of light availability. The uppermost layer of the oceans has maximum light availability, the lowermost layers of the ocean has minimum light availability, and that changes with depth. So yeah, this is also important. Third, bottom substrate. The lowermost layer of the ocean has which is acts as a substrate, and it does determine what kind of organic activity happens in the lowermost layer and affects the upper layers also. So this is also important. So which of the following factors determines biological zonation? So all three: depth, light availability, and bottom substrate. All of these factors are important. So the answer is C, 1, 2, and 3. Match the following events with the dates. This is a very important question. Question number 14. Events and their dates: Earth Day, World Environment Day, Ozone Day, World Nature Day. So we all know that Earth Day is celebrated on 22nd April, right? And we also know that World Environment Day is celebrated on 5th of June. Even a 5th standard kid knows it. So these two we all know. Third is Ozone Day. So I know that Ozone Day is celebrated on 16th September. World Nature Day is celebrated on 3rd of October. But sometimes some students might not know this. So there's a smart way of knowing the answer. First, find the answer which has got the first Earth Day and World Environment Day right, and then others will follow. So क्या हुआ? जब हम ये क्वेश्चन है तो हमको पता है अर्थ डे कब होता है, एनवायरमेंट डे कब होता है, ओजोन डे और नेचर डे कभी कभी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। तो इसका एक शार्प तरीका है पता करने का
कि आप वो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जिसमें ये दोनों के आंसर सही हो, इन दोनों की रेट्स मैच होती हो, तो चांसेस है कि बाकी दोनों की रेट्स भी मैच होंगी। जैसे कि इसमें है ए है, ए था क्या था, ए था अर्थ डे राइट, और बी है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। तो ए के सामने ये है थर्ड, जो कि है 22 अप्रैल, ऑप्शन थर्ड, और बी के सामने है ऑप्शन 1, 5 जून। अब देखिए, ये जो ऑप्शन 3, ये वाला ऑप्शन है, ए के सामने है थर्ड और बी के सामने है 1, और ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 2। बाकी किसी भी चॉइस में जो ए और बी का आंसर है वो सही नहीं है, सिर्फ इसी में सही है। तो चांसेस है कि बाकी दोनों के आंसर भी इसी में सही है, तो यही आंसर होगा, ये 3, 1, 4 और 2, ये ABCD के साथ ऐसे ही मैच होगा। तो जो आपको आता है पहले आप उसको देख लीजिए कि कहाँ से सही से मैच हो रहा है, किस वाले ऑप्शन में से। ये एक ऑप्शन है, ये है, ये है, इसमें ये दोनों जो ऑप्शन है जो हमें आते हैं ये सही मैचिंग है ए और बी के साथ, तो फिर हम इसी को सिलेक्ट करेंगे, और वैसे ये सारा आंसर सही। Assertion A. For sustainable development of a region, proper land use planning is required. Clear? Land use planning involves inputs of soil types, rocks types, seismicity, weather pattern, and economic conditions of the region. So clearly, assertion A तो सही है, sustainable development के लिए proper land use planning तो चाहिए। Land use planning में क्या होता है, soil types, rock types, seismicity, weather pattern, economic conditions of the region, ये सब कुछ land use planning में होता है। So clearly assertion A को reason B जो है, रीजन आर जो है वो क्लियरली एक्सप्लेन करता है। तो इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये इसका आंसर होगा। इसके अलावा ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। टुंड्रा बायोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ ट्रीज एंड परमानेंटली फ्रोजन सबसर्फेस सॉइल। टुंड्रा जो है वो आर्कटिक बायोम होता है। टुंड्रा बायोम इज द आर्कटिक बायोम which has permanently frozen soil, which is permafrost, means permanently frozen soil. And if the soil is permanently frozen, it is very clear that we never have trees on such soils. So lack of trees and permanently frozen subsurface soil is tundra biome. Answer C. 17. Identify the correct sequence with reference to sensitization about environmental problems. तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। हाँ, हमारे टाइम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते थे, और मुझे सच में नहीं पता कि इन क्वेश्चंस का रेलेवेंस क्या है, पर क्योंकि ये क्वेश्चन है तो आपको आंसर तो करना ही होगा एग्जाम में पास होने के लिए। इसका आंसर होगा सी, अवेयरनेस, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, इवैल्यूएशन एबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन। करेक्ट सीक्वेंस विद रेफरेंस टू सेंसिटाइजेशन अबाउट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो पहले आप में अवेयरनेस आती, जागरूकता, कि आपको कुछ जानना चाहिए, तो पहले तो यही। दूसरा नॉलेज, जब आप में जागरूकता आती है तो आप उसके बारे में नॉलेज, ज्ञान बटोरते हैं। फिर आप में एक एटीट्यूड आता है, एक सही गलत का भाव आता है। फिर आप में स्किल डेवलप होता है कुछ भी करने का, कि सही से कोई काम कैसे करें, कोई भी स्किल, पढ़ाई का, एनवायरमेंटल एजुकेशन का स्किल या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का स्किल। फिर आपके अंदर इवैल्यूएशन एबिलिटी आती है, इवैल्यूएशन, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी फैक्ट को इवैल्यूएट करना, सही है या गलत, सरकार की नीति सही है या गलत, इवैल्यूएशन एबिलिटी। और अंत में पार्टिसिपेशन। जब आपको सारे स्किल्स और सही गलत की पहचान हो जाती है, तब फिर आप जो प्रोसेस होता है एनवायरमेंटल प्रोसेस, पब्लिक पार्टिसिपेशन, उसमें आप पार्टिसिपेट करने लगते हैं। सरकार की नीतियों के बारे में आप अपने विचार रखने लगते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि अब आपको सही गलत का पता है। तो आंसर होगा सी, पहले अवेयरनेस, फिर नॉलेज इकट्ठा करना, फिर आपके अंदर एक एटीट्यूड डेवलप होता है, फिर आपके अंदर स्किल्स इकट्ठी होती हैं, फिर आपके अंदर सही गलत की पहचान आती है, और फिर आप पार्टिसिपेट करने लगते हैं प्रोसेस में। 18. For a thermally comfortable seated bare-bodied person at 25 degrees Celsius, the maximum energy loss due to options are radiation, B convection, C conduction और D evaporation। तो ये रेडिएशन नहीं होगा, क्योंकि अगर पर्सन जो है वो कंफर्टेबली सीटेड है, तो इसका मतलब कि उसको ना ठंडी लग रही है ना गर्मी। तो रेडिएशन तो तब होता है जब आदमी का शरीर बहुत गर्म होता है और आसपास का वातावरण ठंडा होता है, तो रेडिएशन नहीं होगा। कन्वेक्शन तो मोस्टली जो है एयर, और कन्वेक्शन जो फ्लूइड मीडियम के केस में ज्यादा होता है। तो कन्वेक्शन इज अ प्रोसेस व्हिच इज related to fluid mediums like water and air, so clearly not. Conduction is when जैसे आप बैठे हैं किसी सरफेस पर, वो सरफेस ठंडा है, तो आपकी बॉडी से हीट उस ठंडे सरफेस में कंडक्ट हो रहा है। तो क्योंकि आप कंफर्टेबली बैठे हैं, तो जहाँ बैठे हमारा ठंडा है ना गर्म, तो कंडक्शन भी कम होगा। चौथा ऑप्शन है इवेपोरेशन।
इवेपोरेशन मतलब आदमी के शरीर से पसीना निकलता रहता है, वो 24/7 निकलता ही रहता है। और 25 डिग्री सेल्सियस पे चांसेस है कि थोड़ा बहुत इवेपोरेशन आपके शरीर से पसीना निकल रहा हो, आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपके शरीर का इंटरनल पोर्शन काफी गर्म होता है। तो उतना शरीर का स्किन गर्म नहीं है, तो भी इवेपोरेशन होता है स्किन से थोड़ा थोड़ा पसीना निकलना, वो सब या फिर रेस्पिरेशन के थ्रू वेपर्स निकलना, वो सब होता रहता है। तो ऑप्शन होना चाहिए डी, इवेपोरेशन। और आंसर, सही आंसर डी ही है, इवेपोरेशन। कंडक्शन भी हो सकता है, रेडिएशन और कन्वेक्शन नहीं होगा, कंडक्शन भी हो सकता है, लेकिन इवेपोरेशन विल बी मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो ठंडा इवेपोरेशन से ही रहता है, जो पसीना निकलता है, भले हमें पता ना चले पर हमेशा पसीना निकलता रहता है, इसलिए तो हम हमेशा पानी पीते रहते हैं। इफ द ट्रोपोस्फेरिक लैप्स रेट बी 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ये याद कर लीजिएगा। ट्रोपोस्फेरिक लैप्स रेट मीन्स द रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर with increase in height from the sea level in the troposphere। तो सी लेवल से जितना आप ऊपर जाते हैं उतना ही टेम्परेचर घटता है ट्रोपोस्फेयर में। और ये किस रेट से होता है? इस रेट से होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। हमेशा 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता है, फिर 1 किलोमीटर और ऊपर जाएंगे तो और 6.5 डिग्री घटेगा। तो ये लैप्स रेट है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर ऑफ एसेंट। एंड टी स्टैंड फॉर ट्रोपोस्फेरिक लैप्स रेट, ये है T stands for temperature and Z stands for Z or Z, जो भी आपके, stands for height above the sea level. Then dt by dz is equal to 6.5 kilometer, 6.5 degree Celsius per kilometer. dt by dz is equal to 6.5 degree Celsius per kilometer. C, dz by dt is equal to 6.5 degree Celsius per kilometer. Or D, small dz by dt is equal to 6.5 degree Celsius per kilometer. So clearly ये जो यूनिट है ना, आप गौर से देखिए, टेम्परेचर पहले है और डिवाइडेड बाय किलोमीटर है, तो क्लियरली dt बाई dz होगा, ये तो हम समझ गए। लेकिन यहाँ पे z जो है, ये कैपिटल Z स्टैंड्स फॉर हाइट, तो हम ढूंढेंगे कैपिटल Z कहाँ, यहाँ स्मॉल z, ये नहीं होगा, ये होगा। आंसर इज बी, कैपिटल D, स्मॉल d और कैपिटल T डिवाइडेड बाय स्मॉल d एंड कैपिटल C इज इक्वल टू 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो पहले आप देखिएगा कि जो क्वांटिटी दी गई है, जैसे यहाँ पे क्वांटिटी है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, इस क्वांटिटी का यूनिट क्या है, और वही जो यूनिट है वो इक्वेशन में भी होगा। तो क्लियरली बी में कैपिटल T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर एंड कैपिटल Z स्टैंड्स फॉर हाइट, सो dt by dz, dt divided by dz is equal to 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। आंसर इज बी, क्योंकि इसका जो यूनिट है वो इस यूनिट से मैच हो रहा है, और कैपिटल T और कैपिटल Z वो यहाँ पहले से ही लिखा है, तो कैपिटल T और कैपिटल Z ही होगा, ना कि स्मॉल z या स्मॉल t। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच बेस्ट डिस्क्राइब्स द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ, सारी ही लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इसके ऊपर एक जल्दी ही शॉर्ट वीडियो करूंगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए। अक्सर स्टूडेंट्स का थोड़ा सा पार्ट वीक होता है फिजिक्स में। तो थर्मोडायनामिक्स में 3 चीज की बात होती है, आइसोलेटेड सिस्टम, स्पॉन्टेनियस चेंज और एंट्रोपी। ये सेकंड लॉ में सब कुछ होता है, स्पॉन्टेनियस चेंज और एंट्रोपी। तो देखते हैं, पहला, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। तो यहाँ स्पॉन्टेनियस चेंज और एंट्रोपी की बात नहीं कही गई। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। एट एब्सोल्यूट जीरो एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस इज कंसीडर्ड टू बी जीरो। तो ये जो है ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। तो ये जब भी आंसर बी है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, और आंसर सी ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। और ये जो है डी, व्हेन एन आइसोलेटेड सिस्टम अंडरगोज अ स्पॉन्टेनियस चेंज द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस। तो ये एक्चुअली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, बिकॉज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है कि द डिसऑर्डर और द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स is always increasing and it increases spontaneously because it has a tendency to increase। तो एंट्रोपी या डिसऑर्डर जो यूनिवर्स का है वो हमेशा बढ़ता ही रहता है, और वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप बढ़ता है, उसको बढ़ने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं, क्योंकि हर सिस्टम का ये टेंडेंसी है कि उसकी एंट्रोपी या उसका डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, और इसीलिए यूनिवर्स भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, तो क्लियरली उसका डिसऑर्डर बढ़ रहा है, वो और डिसऑर्डर्ड हो रहा है। तो यही है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। When an isolated system, मतलब जिस सिस्टम को कोई बाहर से प्रेशर फोर्स कुछ नहीं दिया गया है, undergoes a spontaneous change, spontaneous changes undergoes a change on its own, and the entropy of the universe increases. Entropy means disorderly of the universe increases. So an isolated system, spontaneous change, entropy increases. This is the second law of thermodynamics. So answer is D, 20. I hope
जो मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की, सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में आ गए होंगे, रीजन आपको तार्किक लगा होगा। अगर आपको कोई भी कमी लगती है मुझे जरूर बताएं कमेंट्स में। ये मेरा तीसरा वीडियो है, 3 और वीडियोस मैं अपलोड करूंगी यूजीसी नेट के एग्जाम से पहले, ताकि सारे स्टूडेंट्स को कम से कम 120 क्वेश्चंस आसानी से मिल सके एग्जाम से पहले, क्योंकि समय कम है आपके पास भी और मेरे पास भी, तो मेरी लिमिटेड एबिलिटी है कि मैं इतना ही रिकॉर्ड कर सकती हूँ। जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं कर रही हूँ, क्योंकि डेट एकदम से अचानक से एग्जाम की आ गई। So hopefully what I taught you today was understandable. If you need any more help, do let me know in comments. This is my third video. I'll be uploading 3 more in the coming 2 weeks. So stay connected and all the best for the exams.